Hello and welcome to a very special episode of Frankly Speaking, and tonight I have with me the one and only Kangana Ranaut, woman who's taken on the world and who's not afraid to do so. Thank you very much Kangana Ranaut for joining me on Frankly Speaking. और जैसे मेरा शो है Frankly Speaking, I know आप सीधा बोलती हैं, सटीक बोलती हैं, और आज India wants to hear you speaking very frankly. Thank you, Navika ji. It's my privilege to talk to you. I take little time in English, so pardon me for being little slow in English, but I'll do my best. नहीं, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है और ज़बान से क्या होता है, आप तो नज़रों की भाषा में भी बोल लेती हैं. और कंगना जी, पिछले कुछ दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा टेंस थे, इमोशनली सरचार्ज भी रहे होंगे, और शायद आप एक ऐसे दौर से गुजरी हैं जिसमें आपने उतार ज़्यादा देखे हैं, चढ़ाव शायद कम. How do you feel over the last 10 days that Kangana Ranaut, the woman, the person, has faced? Well, it's a mix of emotions, and I feel that the fact that I am continuing to be the person that I have always been, I pledged to be, that is a big reassurance कि मैंने ज़िंदगी में समझौता नहीं किया. जब मैं 15 साल की थी, I left home against my parents' wish and took responsibility for my life. When I was 16, I went to cop station and filed an FIR against the person who was harassing me. Then when I was 27, I was told publicly to apologize to my ex for having an affair. I fought that case and came out stronger. When Movie Mafia tried to demolish my career in 2019, I publicly announced that they should have not done this, and now I will go after them. Not because of vengeance or something, but out of my survival instinct. So I continue to be that person. That is a big reassurance to me that I have not succumbed to the pressure around me, and the enemies have gotten stronger and stronger. Circumstances have become more and more intense in terms of the involvement of the people. Initially it was more, like I said, you know, how gradually my enemies are becoming bigger and stronger and stronger. So yes, it takes a toll on you on many levels, and there is huge support that we cannot deny. There is so much love, there is so much concern, but at the same time there are these people who are just so downright nasty that it breaks your heart to be subjected to that kind of cruelty, especially when your fight is not is not for yourself. It is based on altruism, and it is based for everyone's well-being. So that way it's been a roller coaster, I'll say. You face some hostile and very charged atmosphere, and आपने कहा कि आपकी जिंदगी को, आपकी जान को खतरा है. आप जब मुंबई गए पिछले हफ्ते, और मुंबई आपके पहुंचने से पहले demolition of your home, a part of your home which was alleged to be illegally constructed and not following the bylaws. How does that make you feel, Kangana Ranaut? The demolition and the confrontation that resulted in that demolition. Well, it is something that has started from Sushant's murder/death, and it just one thing rolled into another, and drugs came about, and I had a lot to add to that as an insider of the industry. And we've all witnessed that how Sushant's father has been complaining about the shoddy investigations by the police and Maharashtra Sarkar.
I simply said that now that I have busted the drug racket, I would like to have security from the center. And as if they were just waiting to, to attack me. The whole system came and started this smear campaign, this open lynching, butchering of a single woman who just happened to be a very helpful in a death case of a young bright man who had dreams and who had hopes, who had millions and millions of people as fans. I was told they will break my face, I am a haramkhor, and and I said, well, this doesn't seem like Mumbai, it seems like POK. Then they just completely, they took advantage of that and tried to gather a mob to lynch me, because I said POK, but I should have said Syria, because when Rahul Gandhi says that India is like Syria, nobody lynches him, nobody breaks his house. What is the matter with these people? They were just simply waiting for people to get onto me, to gather a crowd. They're lying. I said something about Mumba Devi. Where did I say anything about Mumba Devi? This person went on records and said that I said something derogatory about Maharashtrian people, about police. When did I say that? Today, if we have better administration, nobody will stop Mumbai police from doing a good job. They are just simply, the way they got sadhus lynched, they're simply trying to collect a mob around me and to lynch me to death. So I saw that, and I could see this, and the whole country could see this, and there was that time where for the first time I felt that, oh, it's just not me or an individual battle. It is now they are trying to gather a crowd and probably an entire state and authorities against me. So that is the time my sister approached the Home Minister's office. She expressed her concerns that, these people are trying to openly lynch her and turn the entire force and the entire state against her, and that too based on lies and blatant lies. So then they told us that, well, it doesn't look like something that, where you need security, but we will still get IB to investigate the threat. And we were relieved that, maybe we are over-imagining and, it's not something dangerous. And then in 2 days, we get a call from, again, Home Minister's office, and they're like, you got to be very careful. Your threat is real, and now you will do as you are told by the security, and you are getting Y+ security. And ever since, nothing has been same. I mean, here in Manali, we had some people, and then we went to Chandigarh. Some more armed CRPF people joined us. And then as we landed in Mumbai, I could not see anything else but only armed forces around me. And, it is the way they intensify and the way they, kind of become lesser and lesser. It is a clear indication of the threat around you. When they demolished the office, after that, the intensity of the security became so high. For me to land in my house with that kind of security, in my own house, and then to visit my other house, which I use more like an office, and to see it completely destroyed. House is not just roof and walls or furniture. House is an extension of your emotional body. And when I was in the flight, they gave us hardly 24 hours notice. I was in the flight, the bulldozer was already there. So I called my lawyer desperately. I said, what do I do? Because I'm in the flight, my phone will go off. He's like, ask your helper to leave from there and lock the office. There's no way anybody can enter that. They don't do this even with gangsters and murderers and criminals. And they will wait for you to come, and don't worry, nothing will happen. They broke the lock. They entered, they completely broke the house down, and उन्होंने ताला तोड़ा मेरे घर का.
उन्होंने मेरे घर का ताला तोड़ा और मेरे घर में कम से कम 40 से 50 घर तोड़ने वाले लेके आए थे. एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द लोकेलिटी, शी इज अ वेरी काइंड वुमन, लाइक अ मदर फिगर टू मी. शी सेड दैट कंगना, आई वाज स्टैंडिंग देयर, आई हैड टीयर्स इन माय आईज, एंड द बीएमसी पीपल हु आर, शी इज वेरी फ्रेंडली टू, और वो उनके जानने वाले हैं, उनके जो काम करने वाले हैं, वो आके कह रहे थे कि सर हमारे बच्चों को बद्दुआ लगेगी, हमसे ये करवा रहे हैं, हमारे कर्मों का फल हमारे बच्चों को करना पड़ेगा, हमसे ये क्या करवा रहे हैं. These are their words. So when I saw that, I felt like I'm raped. The way today, आज अगर आपके घर में, if there is a robbery, even if the thief has not taken anything, but still you feel violated mentally, psychologically, emotionally. Your bedroom, your living room, अगर आपके सोफा पे चाय भी गिर जाती है, आपको कैसा फील होता है? वहां दीवारें की दीवारें उखाड़ दी हैं, छत तोड़ दिए हैं, छत उखाड़ दिए हैं, बिल्कुल मेरे पूरे टॉयलेट्स के टॉयलेट्स तोड़ दिए हैं. बात कह रही हैं कंगना जी, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं. आप कह रही हैं दिस वाज लाइक रेप. बहुत बड़ी बात है किसी भी औरत को ये कहना कि लाइक, से क्या होता है ना नाविका जी, अगर कोई एक इंसान, जैसे कि आपका, मेरे इंडिविजुअल दुश्मन बहुत रहे हैं, मगर जो गवर्नमेंट होती है, इट इज इन द पोजीशन ऑफ अ गार्डियन. एक फादर फिगर या मदर फिगर होते हैं आपके लिए. जब रक्षक भक्षक बनता है ना, तो आपको उस बात का अंदाजा नहीं है वो क्या स्थिति होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कर रही थी, ये कोई इंडिविजुअल नहीं कर रहा था, ये सरकार कर रही थी मेरे साथ. तो आपको क्या लगता है मैं किससे लड़ूं? अब मैं किससे लड़ूं? और लेट मी कम टू द पॉइंट विच हैज हर्ट मी वेरी मच. और आई डोंट थिंक आई हैव, जब मैं मुंबई में रही, मैं 4 दिन मुझे जिस तरह से टॉर्चर किया गया, क्योंकि मैं 14 तक की मेरी फ्लाइट थी, हर दिन लोगों से मुझे फोन करवाए गए कि यहां से भाग जा, नहीं तो तेरे को जेल में डालेंगे, तेरे को ड्रग केस में फंसाएंगे. सेडिशन का केस डाला मुझ पे. किसने फोन किया आपको? मानहानि के केसेस डाले. जो मेरे लोकल फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को उनके फोन आए और उनको धमकाया जा रहा था. मेरे जहां पे मेरा घर है, मेरे पड़ोसियों को कहा कि अगर आपने इसको सोशली आइसोलेट नहीं किया, आपके घर भी तोड़े जाएंगे. उनके मुझे फोन आ रहे थे कि आप प्लीज अपना ख्याल रखना. मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी ने भी मुझे किसी तरह का दबाव डाला, लेकिन मेरा सारा वक्त वहां पे लॉयर्स के साथ, और मेरा जहां पे मैं रहती हूँ उस घर पे भी वो लोग बुलडोजर चलाने के लिए या वहां पे भी उसको तोड़ने की मुझे धमकियां बार दे ही रहे हैं. और अगर मैं उनसे लीगली पूछूं तो वो कहते लीगली हमने वो भी थोड़ा ना तोड़ा था. आगे से जवाब आ रहा है कि तोड़ देंगे, फिर क्या तुम केस लड़ते रहो कोर्ट में, उससे क्या होता है. तो मैं आपसे कह रही हूं कि अगर सरकार ही आपके साथ में ऐसा करती है तो आपकी क्या लाचारी होगी, कितना असहाय महसूस करेंगे आप. और उस तरह से, जिस तरह से मेरे साथ इतना गंदा सलूक हुआ और इतनी गंदी मुझे वहां पे गालियां दी गई, हरामखोर. अगर हरामखोर का अपने डिक्शनरी, आज तक मुझे पता नहीं था कि उसका मतलब क्या होता है, लेकिन जब मैंने उसका मतलब देखा तो उसका मतलब होता है मुफ्तखोर, हराम का खाने वाले. सो नविका जी, आई टेक योर 2 minutes एंड आई एक्सप्लेन टू यू कि जैसे आई एम द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, तो पिछले साल का मेरे जो ऑल द टैक्सेस कंबाइंड मस्ट बी बिटवीन 15 to 20 crore. आई एम अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस महाराष्ट्र इकोनॉमी. मगर जो मैंने एम्प्लॉयमेंट अपने लिए और अपने 25-30 लोग जो हर वक्त मेरे साथ काम करते हैं उनके लिए, और जब मैं फिल्म शूट्स पे जाती हूं तो हर एक फिल्म शूट में 200-200 लोग होते हैं उनके लिए. जब मेरी फिल्म थिएटर में आती है तो कितने हजारों लोग, उनके लिए मैं लड़की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हूं. मैं हरामखोर नहीं हूं. और जो टैक्स स्लैब में मैं आती हूं, मेरा हाईएस्ट टैक्स स्लैब है, मेरा टैक्स 43-45% के बीच होता है. आफ्टर गिविंग कमीशंस और आफ्टर गिविंग सैलरीज, मेरे को अपनी आमदनी में से मेरा 40 या 45% मेरे को आता है. बाकी मैं सब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के उसमें जाता है. तो वहां रहने का, काम करने का आप मुझसे टैक्स लेते हैं ना संजय जी. आप किस तरह से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, मुझे वो जानना है. आपकी खुद की क्या हैसियत है 1 रुपया कमाने की? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि संजय राउत ने जो कहा या बीएमसी ने जो किया, क्या वो
उद्धव ठाकरे जी जो चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, और आदित्य ठाकरे जी जो उनके सुपुत्र भी हैं और मंत्री भी हैं, इनकी जानकारी के बिना या इनके आशीर्वाद के बिना ये हो सकता था? देखिए, उन्होंने सामने आके, पब्लिक के सामने आके उन्होंने भी मुझे बहुत गलत बातें कही हैं कि मैंने मुंबई पुलिस के बारे में क्या कहा? मैंने आपके प्रशासन के बारे में कहा, और मैंने ये भी कहा कि आज अगर वहां कोई और सीएम होते तो मुंबई पुलिस अपनी जितनी वो एफिशिएंट है, अगर उनको काम ही ना करने दिया जाए तो पुलिस क्या करेगी? मैं उद्धव ठाकरे जी से पूछना चाहती हूं कि बाला साहेब ठाकरे जी से उन्होंने सब कुछ इनहेरिट किया है, अपनी प्रॉपर्टीज, पावर, शिवसेना, लोगों की लॉयल्टी, सब कुछ उन्होंने किया है। लेकिन मैं उद्धव ठाकरे जी से कहना चाहती हूं, उनकी आइडियोलॉजीज जो उन्होंने करोड़ों हिंदुओं को वादे किए थे, जो उनका वैल्यू सिस्टम था, कोर वैल्यू सिस्टम जो शिवसेना का था, उसका क्या? शिवसेना आज सोनिया सेना। और ये बाला साहब ठाकरे जी ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि जिस दिन मैं नहीं रहूंगा, मेरी शिवसेना जो है गुटबंधन करके कांग्रेस के साथ में मिल जाएगी। क्योंकि जब ये देश और खासकर मुंबई रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के चुंगल में था, तब कांग्रेस ही लीडिंग पार्टी थी। तो आज आपने उनके साथ में गुटबंधन किया, बाला साहब ठाकरे की वैल्यू सिस्टम का क्या? उसका क्या? उसको तो आपने छोड़ दिया। तो आपको क्या हक बनता है इन सब चीजों को इनहेरिट करने का? तो उद्धव ठाकरे जी मुफ्तखोर कौन है? संजय जी मुफ्तखोर कौन है? मैंने आपको बता दिया कि मैं जो पाई पाई कमाती हूं उसको तन मन धन से मैं इस देश के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए तत्पर रहती हूं। और कितने मैंने चाहे हॉस्पिटल्स बनवाए हो, चाहे मैंने कुछ भी डोनेट किया हो, हमेशा मीडिया में रहता है। हर चीज में मैं डोनेट करने में आगे रहती हूं। आप मुझे मुफ्तखोर कह रहे हैं? मैं चाहती हूं कि संजय राउत जी मुझसे माफी मांगे, और जिस तरह से मेरे आत्मसम्मान को, जिस तरह से मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया गया है, सारी दुनिया के सामने मुझे बेइज्जत किया गया है, मैं चाहती हूं कि वो इस चीज के लिए मुझसे माफी मांगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कंगना रनौत जी, दैट द डे द डेमोलिशन वाज हैपनिंग, आपके घर पर जब बुलडोजर आए तो मुंबई पुलिस साथ में खड़ी थी। पूरी मुंबई पुलिस साथ आई, साथ में खड़ी हुई थी, एक तरह से सिक्योरिटी देख रही थी और दूसरी तरह से एक तमाशा भी देख रही थी। और लेकिन उसके बाद मुंबई पुलिस ने आपको तो क्या प्रोटेक्शन देनी थी। होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जी ने कहा कि आप बहुत कुछ बोल रही हैं, और एक उन्होंने रेफरेंस दिया एक 4 साल पुरानी इंटरव्यू जिसमें अध्ययन सुमन ने ड्रग्स की बात कही कि कंगना ड्रग्स करती है, और उन्होंने कहा कि आपकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आप इतना कुछ ड्रग्स के बारे में जानती हैं, उस बारे में आप इंफॉर्मेशन रखती हैं, आपको एनसीबी जाकर देना चाहिए था, सीबीआई जाकर देना चाहिए था या ये इंफॉर्मेशन। लेकिन अब मुंबई पुलिस आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगी ड्रग लिंक्स के बारे में, इस पर आप क्या कहेंगी? जी, उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिशें की कि दे पुट मी बिहाइंड बार्स and they could set an example out of me that, you know, if you raise voice against the government there, so this is what will happen to you. They're trying to make an example out of me. Well, I am the first one who has gone on record to give detailed overview of my experiences with drugs in the film industry. What is there to hide? I myself have said it, and I am myself saying it, that if I was not 100% clean, why would I try and bust this racket? I have never called any drug peddlers ever. I have never, myself bought drugs. But yes, I've been exposed to people and I see it very closely and clearly. And I want this, and also I've seen the drug menace and how जो हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उसको कैसे खोखला किया जा रहा है ड्रग्स से। पंजाब में ऐसी जगहों में ऐसे गांव हैं पूरे जहां पे सिर्फ विधवाएं हैं। I have seen all this myself. And people who are saying that, okay, why are you maligning Mumbai? What is there to malign about it? If you're talking about wrong practices at any place, why people are getting defensive? Because they are a part of those practices. Very easy to see. And another thing I want to talk about, that a lot of people, today also I saw one very derogatory interview given by Urmila Matondkar,
The way she was talking about me, just completely teasing through the interview, pulling faces and just making a mockery out of my struggles, and attacking me on the basis that I'm trying to please BJP for a ticket. Well, one doesn't have to be a genius to figure that. For me, it's not very difficult to get ticket. I don't have to play with my life or to get my property ruined. Even Urmila Matodkar, she is a soft porn star. I know it's very blatant, but no, I want to ask you, she's not known for her acting for sure. What is she known for? For doing soft porns, right? If she can get a ticket, why won't I get a ticket? Anybody is getting a ticket, everybody is getting a ticket. तो आप ये जब आप ये बात करती हैं कि महाराष्ट्र, मुंबई वॉज इन द हैंड्स ऑफ इस्लामिक्स, हाजी मस्तान, दाऊद की आप बात करती हैं, तब बाला साहब ठाकरे आए थे, तो लोग ये कहेंगे कि आप एक ड्रग वॉर बॉलीवुड को सुधारने के लिए लड़ रही हैं, आप जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ रही हैं, या आप एक पॉलिटिकल बैटल लड़ रही हैं? आप कौन सी लड़ाई लड़ रही हैं कंगना जी? नविका जी, मैं एक्चुअली में सिर्फ अपने लिए लड़ रही हूं। मैं आज ये बात क्लियर कर देना चाहती हूं कि मैं अपने लिए लड़ रही हूं, क्योंकि जब मैं अपने लिए लड़ूंगी तो कई लोगों को जो है वो मुझसे प्रेरणा मिलेगी, और ये जब सिस्टम सुधर जाएगा, जब आपके रास्ते में कांटे आते हैं और पत्थर आते हैं, चट्टानें आती हैं, तो आप उनको हटाते हैं, आप अपने लिए हटाते हैं, मगर आप ये भी जानते हैं कि आप उनसे कूद के फांद के निकल जाएंगे, मगर बहुत निकल नहीं पाएंगे, तो आप उनको हटा के जाते हैं। तो मैं वो कर रही हूं, आई एम क्लीनिंग द पाथ फॉर मेनी, क्योंकि मेरे रास्ते में ये चीजें आई हैं। आई स्टार्टेड एज एन इंडिविजुअल, आई वॉज harassed, molested in the film industry. Then I was faced with drug racket, and when they disposed me off, they tried to put me in jail. Who were these What Jayaji people? has to say about that, I want to know. Who were these people? They're all their near and dear ones. These people, I told you, the people who put case on me for apologizing, and the basis of the case was that I called him my silly ex. So I want to know from Jaya Bachchan ji, who says that हमारी इंडस्ट्री गंगा की तरह पवित्र है, we have a murder on our hands. Why can't they see us? मेरा घर वहां पे उन्होंने दिन दहाड़े तोड़ दिया और हेडलाइन लिखा उखाड़ दिया. Why Jaya Bachchan ji cannot see that? और वो देखना नहीं चाहते हैं. हम लोगों का खून पानी है. आप क्या कह रही हैं? जया बच्चन जी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा कि एक ब्रश से सबको पेंट नहीं करना चाहिए. तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूं, क्या सब लोग बॉलीवुड में ऐसे हैं? और आपने शायद उनका जो जवाब दिया, क्या वो सही था? वॉज दैट क्रॉसिंग अ लाइन? यू टॉक्ड अबाउट गेटिंग पर्सनल. उनकी बेटी, उनका बेटा लटका हुआ मिलेगा, शायद आपने भी उन्हें हर्ट किया. क्या हम एक दूसरे को अगर हर्ट करते रहेंगे तो ये रुकेगा कहां जाके? नविका जी, हर वो इंसान जो जुल्म के खिलाफ आवाज ने, आप वो देखते होंगे पुरानी फिल्मों में जो होता है, एक इंसान का खून होता है और डाकू पूछता है सबसे, तुमने कुछ देखा, तुमने कुछ देखा? और वो कहते नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा. वो सब गुनहगार हैं, वो सब क्रिमिनल हैं, और ये सब बॉलीवुड ने यही किया है. That is why I don't think कि उन लोगों को पोलाइटली और नाइसली कोई बात समझ आ रही है. जब वो लोग इतना थिक स्किन्ड हो चुके हैं कि उनको एक असहाय बाप पिताजी के दुख नहीं, मैं ये नहीं कहती कि वो सुशांत के लिए जस्टिस मांगे, नहीं, बस सिंपल एक मैसेज के एक पिता ने अपना बेटा खोया है जो कि हमेशा कहता था कि मुझे यहाँ पे बुली किया जा रहा है, मुझे बॉलीवुड से निकाला जा रहा है, उसके साथ अत्याचार हुए, अन्याय हुए. तो क्या ये लोग ये नहीं कह सकते थे कि हम आपका दुख समझते हैं, हम आपको सांत्वना देते हैं? ये नहीं कह सकते थे ये लोग? क्यों नहीं कह सकते थे ये लोग? तो क्या वो उस खून में हिस्सेदार नहीं है? कंगना जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी. मैंने जो है एक और सवाल ये पूछना चाहती हूं कि ये ड्रग्स की बात है, ये क्लीन अप की बात है, ये बॉलीवुड को जो बुरा नाम दिया जा रहा है, इसकी जब बात चली तो मैं आपसे पूछूंगी कि एक सिटिंग एमएलए थे दिल्ली के, मनजिंदर सिंह सिरसा जी, उन्होंने एक साल पहले
वीडियो दिया था जो करण जौहर के पर्पोर्टेडली घर में एक पार्टी चल रही थी। वीडियो में ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन सिरसा जी जो एक लेजिस्लेटिव पोजीशन होल्ड करते थे, उन्होंने कंप्लेंट लिखी थी लास्ट ईयर मुंबई पुलिस कमिश्नर को, लेकिन उसमें तो कोई तहकीकात नहीं हुई। आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा और लोग कह रहे हैं बदनाम किया जा रहा है इन लोगों को। और उस वीडियो में बड़े बड़े नाम हैं, मलाइका अरोड़ा हैं, दीपिका पादुकोण हैं, शाहिद कपूर हैं, इन सब के तस्वीरें नजर आ रही हैं। किसी को नहीं पता कि वहां क्या चल रहा था, पर एक कंप्लेंट है, कंप्लेंट को तो देखा भी नहीं क्या। लेकिन अनिल देशमुख जी कहते हैं कि कंगना जी की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ड्रग टेस्ट होना चाहिए और इन पे होना चाहिए। आपको लगता है कहीं ये डबल स्टैंडर्ड्स है? क्योंकि मैं नविका जी मैं आदित्य ठाकरे की दोस्त नहीं हूं ना। उनके बहुत प्यारे दोस्त हैं। करण जौहर जी उनके बहुत प्रिय हैं, जो कि हमेशा अक्सर ट्विटर पे भी एक दूसरे को बहुत जो दोस्ती है और वो सब बताते रहते हैं कि हे बडी, ये वो उनका चलता रहता है। सो वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्रता है उनकी। तो उनको करके उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं और हमारे घर तोड़े जाते हैं क्योंकि हम आवाज उठाते हैं अन्याय के खिलाफ। ये स्पेशल क्लास ऑफ पीपल है क्या? क्लास वाइज है? कैसे डिवीजन होती है? आई थिंक फॉर मी आई फील कि चोर चोर मौसेरे भाई, जिन लोगों के अपने जो पर्सनल जैसे इंटरेस्ट हैं, जैसे जिस तरह से वो संगति रखते हैं और जिस तरह की वो उनकी प्रवृत्ति है, इट इज वेरी इजी टू सी व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर। मतलब नेशनलिज्म पे भी फिल्म बनाने जाते हैं, देशभक्ति में, उसमें देशभक्ति की ही बुराई करते हैं। अभी उनकी एक फिल्म आई थी गुंजन सक्सेना, जिसमें देशभक्ति की ही बुराई कर रहे हैं, जहां पे जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि मैं बस पायलट बनना चाहती हूँ मगर मुझे देशभक्ति वगैरह अच्छी नहीं लगती। तो क्या इनकी प्रवृत्ति है, कैसी ये पार्टीज करते हैं, किस तरह के ये लोग हैं, किस तरह के इनके संस्कार हैं, वो ये आपस में ही इन लोगों की वो बनती है। हमने ना कभी ऐसी कोई इच्छा ही जताई और ना ही कभी किसी तरह का टेंडेंसीज हैं और ना ही कोई किसी तरह की डिजायर है टू बी फ्रेंडली इन दैट सर्कल। मगर बट एवरीबडी नोज दैट आदित्य इज वेरी क्लोज टू देम, सो दे आर ही इज प्रोटेक्टिंग हिज फ्रेंड्स। और इसीलिए आई थिंक जो इनको मिर्ची लगी है, इसीलिए, क्योंकि मैंने बताया राहुल गांधी तो सारा दिन इंडिया को सीरिया कहता है। मैंने कहा नविका जी, मैंने ये लिखा था कि अगर मुझे वहां आने से, मुंबई आने से मना किया जा रहा है, आजाद कश्मीर के प्लेकार्ड्स उठाए जा रहे हैं, तो ये मुंबई है या पीओके है? क्वेश्चन मार्क। ये मेरा ट्वीट था। लेकिन इन लोगों ने पूरी जनता को मेरे खिलाफ मॉब लिंचिंग जैसे कि साधुओं की वो कराने की कोशिश की। आप कह रही हैं करण जौहर वाली जो वीडियो है उसमें कुछ था ही नहीं? आपको लगता है कि उस वीडियो में कुछ था? आप ऐसी पार्टीज के बारे में कुछ जानती हैं? क्योंकि आप नाम ले रही हैं कि करण जौहर आदित्य के फ्रेंड हैं, पर लोगों का कहना है कि वीडियो में तो कुछ नहीं लिख रहा। आप वीडियो चला के शायद जस्ट उसको वायरल करके टीआरपी बढ़ा रहे हैं, एक ये भी एलिगेशन लगता है। नहीं, पार्टी में इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। जब आप कोकेन करते हैं तो आप नोज के थ्रू स्निफ करते हैं, तो जब भी कोई ऐसे इस तरह के बहुत ज्यादा आप एक्शन कर रहे हो या बहुत ज्यादा स्नोटिंग कर रहे हो, जिस तरह से आपका माहौल हो, अक्सर आप देखते हैं पार्टीज में लोग बातें करते हैं या किसी तरह की कोई इंटरेक्शंस हो रही होती हैं, लोग अलर्ट होते हैं, हंस रहे होते हैं, चुटकुले एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। अक्सर पार्टीज ऐसे ही होती हैं। लेकिन जहां पार्टियों में लोग धुत पड़े हों और शराब ना दिख के, स्नोटिंग के बहुत ज्यादा सब लोग नाक से स्नोट कर रहे हों और कुछ पाउडर वगैरह आपके आसपास पड़ा हो, तो इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है कि वहां पे कोकेन कंजम्पशन हो रही है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, मैं कोई इसमें अथॉरिटी नहीं हूं, मगर अगर आपने संजू जैसी फिल्में देखी हो या और भी, मैंने भी एक फिल्म फैशन में काम किया था, हीरोइन जैसी फिल्में बनी हैं, फिल्म इंडस्ट्री पे आधारित हैं, तो ड्रग्स जो है वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। और ऐसे प्रिटेंड करना कि ये बात छुपी हुई है तो आपस में आई थिंक अपने आप से झूठ बोलने जैसा है। तो कंगना जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, सिरसा जी की कंप्लेंट पर 1 साल कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई?
वेल नाविका जी, मैं ये नहीं बता सकती, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे वो महाराष्ट्र की जनता हो या चाहे वो महाराष्ट्र की पुलिस हो, कमी उनमें नहीं है। ये प्रशासन में आज मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा ग्रसित प्रदेश है, राज्य है। इसका क्या रीजन है? बिकॉज ये लोग अपनी जो काम है उसको डिजर्व नहीं करते हैं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मैं बांद्रा में वोट देने गई थी एंड आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द वोटिंग मशीन, आई रिमेंबर, बिकॉज आप बताते नहीं आप किसको, आई वाज लाइक अरे भाई, बिकॉज आई एम सच अ बीजेपी सपोर्टर, आई सेड बीजेपी का बटन कहाँ है? एंड दे लाइक प्रेस शिवसेना। आई सेड व्हाई शुड आई प्रेस शिवसेना इफ आई वांट टू वोट टू बीजेपी? सी, आई डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, you know, I am very naive. I don't know why these groupisms happen and what happens, but I was forced to put my hand on Shiv Sena button because there was no option of BJP. Their alliance was for those areas only and only Shiv Sena. So I voted for them, and this is what I'm getting the treatment from them. Yes, at one point, like I said, you know, they were a fringe group, but now that they have risen to whatever dirty politics they did, they've risen to the power of a political party, the governing government and the ruling party. They have to re-look at their role in the society. They can't behave like terrorists and rapists. They need to re-look at their roles. They can't threaten a young woman simply because she's questioning their way of working. कंगना जी, एक चार्ज आप पे और भी लगा है कि जिस थाली में आप खा रही हैं उसी में छेद कर रही हैं। जया जी ने ये कहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या आप बॉलीवुड को जरूरत से ज्यादा काला दिखाना चाह रही हैं जैसे जया जी कह रही हैं, या आप इसको सुधारना चाह रही हैं? नहीं, मुझे देखिए नाविका जी, मैं कौन होती हूँ बॉलीवुड को काला दिखाने वाली? बॉलीवुड की करतूतें खुद सब दुनिया के सामने आ रही हैं। मैंने जैसे आपको कहा, अगर इनकी खुद की फिल्में उठा के देख लो, उसमें सब पता चलता है कि ये कहाँ से, इनका कितना कर इनको दिमाग है और कितने कर इनको वैल्यूज हैं, वो सब समझ आता है। मगर आई वुड लाइक टू से कि यस, जब फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई थी थ्रू 50s 60s, इट वॉज अ गोल्डन पीरियड ऑफ सिनेमा। मगर When आज ये जो जितने इज्जतदार बनते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री के, कि हम तो इज्जतदार हैं, इन लोगों को कोई याद दिलाए कि सुषमा स्वराज जी ने कुछ ही डेकेड्स पहले इसको ऑफिशियल अंडरवर्ल्ड से ऑफिशियल इंडस्ट्री बनाया है। ये अंडरवर्ल्ड था, इनको कोई पैसे नहीं देते थे फिल्म बनाने के लिए, तो सुषमा स्वराज जी ने इनको अंडरवर्ल्ड के चुंगल से निकाला है। और आज भी कोई 5-6 जनरेशन पहले नहीं, हमसे पहले की जनरेशन, संजय दत्त जी या अनिल कपूर जी, गोविंदा जी, पता नहीं कितने सारे कलाकार दिखते हैं आपको दाऊद की पार्टियों में नाचते। अबू सलीम के साथ में केस में मोनिका बेदी जी, मतलब आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बेवकूफ किसको बना रहे हैं ये लोग? आज झटपट से इज्जत का क्राउन जब मन करता है तब पहन लेते हैं, जब मन करता है तब माफिया बन जाते हैं। तो ज्यादा करके बर्बादी जो फिल्म इंडस्ट्री की हुई है, ये जब ये पूरा रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म ने जो इसको कंट्रोल किया, उससे जो इसकी बर्बादी हुई है वो इस तरह हुई है कि हम लोग, जब मैं 2000s में मैं फिल्मों में आई, तो इवन देन फिल्मों की हीरोइंस मतलब सिर्फ आइटम नंबर, कुछ 1-2 इसके सीन्स, और चलो एकदम नौकर की तरह बिठा के रखते हैं सेट पे। जब हीरो आएगा तब स्माइल दो, ना डेट्स आपको देते हैं, सारा आपका कैलेंडर खाली होना चाहिए। जब महान हीरो जी की आपको डेटें मिलेगी तब आपको डेट दो, एंड इट इज अनरिटन लॉ कि आपको रात को उनके कमरे में जाना पड़ेगा, उनको गर्म दूध का गिलास लेके। कहां से इज्जत का क्राउन पहन लेते हैं? ये मुझसे आके बात करें। Are you saying कि अगर आपको फिल्म में हीरोइन बनना है तो you have to go through the bed of the hero of the film? Are you saying this officially? नहीं, अगर आप बहुत सक्सेसफुल हीरोइन भी हैं, तब भी अगर आपको फिल्म चाहिए तो आपको खुश करना पड़ेगा, या तो डायरेक्टर को या तो हीरो को। कोई तो आपके उसमें होना चाहिए ना, जो 10 लोगों में, जब 10 लड़कियों की लाइन है उसमें से आपका नाम बताए। पर ऐसे आप सब पे उंगली, ऐसा क्या एक्स्ट्रा है? सारे तो ऐसे नहीं हो सकते ना कंगना जी, सारे तो ऐसे नहीं हो सकते। या तो आप
नाम लीजिए। अगर आप ड्रग्स की बात करती हैं, आपने किसी पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि वाइव्स ऑर्गेनाइज ड्रग पार्टीज, आपने टेस्ट देने के लिए कुछ एक्टर्स का नाम लिया है। you are an intrinsic part of this film industry. You are successful. आप एक ऐसी मुकाम पे हैं जहां आप हिम्मत भी रखती हैं और ओहदा भी रखती हैं कुछ कहने का कि ये कौन लोग हैं। सब तो ऐसे नहीं हो सकते, एक जनरलाइजेशन तो नहीं हो सकती। अगर आप इसको मानती हैं तो आप नाम क्यों नहीं लेती, इनकी कंप्लेंट क्यों नहीं करती? नविका जी, मैंने जिनके नाम लिए थे, 6-7 केसेस मुझ पे हुए थे। महा गवर्नमेंट ने 6-7 केसेस मुझ पे डाले हैं। मैं जिंदगी में लड़ना चाहती हूं, मैं जिंदगी में विजयी होना चाहती हूं। ऐसे थोड़ा ना मैं आज ही जेल चली जाऊं तो मेरी तो लड़ाई यहां की यहां खत्म हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं सबको जनरलाइज कर रही हूं। मैं जिसको मिली हूं, A लिस्ट, B लिस्ट, A+, biggest superstars. The expectation from a girl is to behave like a wife on the sets, and next film comes, next hero comes. This is the truth of the industry. Maybe Jayajee was a protected woman because she had a powerful man by her side. I am not denying her experiences. She was maybe sheltered by a very powerful man. But what happened to Parveen Babi and Zeenat Aman, we also cannot deny those. Maybe she's lucky. They are the way they are treated, beaten to death. I don't want to say, but it is on record. आपने प्रवीण बाबी की बात कही, आपने कई बार महेश भट्ट by Sanjay Khan, it is in. महेश भट्ट के बारे में भी आपने कई बार नाम लिया है। महेश भट्ट के बारे में, do you have any specific, or are you generally saying that because what we've read about his I am giving. See, look, Navika ji, you have to please understand and give me, no matter what people tell about me, you have to, on your own perception, decide what is there for me to gain. Definitely not films, not brands, not friends. What am I gaining in this? None of these people I have any personal equation or vengeance with, because like I said, now for 5-6 years I am only doing female-centric films. I am the only hero on my sets. This is my personal conscious decision that I have taken. What I have to do with heroes now? When I don't work with them. But I am still saying this. And people who are saying that I want to join politics, well, anybody from veterans to new to serial people to Tamil actors to Hindi actors to Bhojpuri actors, everybody gets a ticket. I don't have to do this. I've received many tickets for this, to join politics. Jayajee was in Rajya Sabha yesterday. Did anybody break her house? Did she busted a drug racket? What did she do to deserve that? You can come in politics without anything like that. But that is not my prerogative. Please give me that much due. Give me that much due. I am the highest paid actress. I have my calendar full for next 3 years. I have launched my studio. I have launched my film in my studio. My next 5 years, I don't have time to breathe. But if I join politics, it's simply because I have to compromise on my career and do something for people. What will politics give me? Tell me popularity? Politics will give me popularity, more popularity than I already have. Money? Underhand, politicians may earn as much they want to. But directly, do they earn more than a superstar who's at the top of her game? Please, anybody who are talking rubbish like that need a reality check. Please stop with this nonsense. तो जया जी ऐसा क्यों कह रही थी? आपको क्या लगता है? Like I said, जिस तरह से मेरे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से मेरे दुश्मन पावरफुल होते जा रहे हैं, अब ये फिल्म इंडस्ट्री, जब तक कुछ लोग थे मेरे खिलाफ थे, अब जब मैंने ड्रग रैकेट बस्ट किया है तो अचानक से पॉलिटिकल लोग भी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ में मिल चुके हैं, और शिवसेना और समाजवादी जो कभी नहीं मिले वो भी मिल चुके हैं। तो अब ऐसे अनयूजुअल काम हो रहे हैं, ऐसे लोग गुटबंधन कर रहे हैं, तो कुछ तो मैंने कहा होगा जो जहां जाके उनको हर्ट हुआ है, नहीं तो ऐसे गुटबंधन पहले नहीं हुए हैं।
तो वो जो हर्ट हुआ है उसमें आई एम वेरी ग्रेटफुल कि कैसे ना कैसे भगवान की, वैष्णो माता की मुझ पे कुछ ना कुछ तो मेहरबानी रही कि मेरे को भी कुछ पॉलिटिकल असिस्टेंस मिली, मेरे को सिक्योरिटी मिली। नहीं तो मैं तो यहाँ से मेरे को जो हिमाचल गवर्नमेंट दे रही थी ऑफिसर्स, उनके सामने मैं जा रही थी, मैं रुक नहीं रही थी। मगर इनके साथ में पॉलिटिकल पार्टियां मिल गई हैं तो मुझे भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिली, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। नहीं तो इन लोगों ने तो मुझे साधुओं की तरह लिंच कर देना था वहां पे। आपने इतने नाम लिए, ये आपके जो दुश्मन हैं जो बड़े बड़े होते चले जा रहे हैं, ये दुश्मन कौन से हैं? कुछ तो गिना दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि जो भी मूवी माफिया है, जिन्होंने सुशांत को सताया, सुशांत को बैन किया, मैंने उन लोगों के बारे में बहुत ही खुले में बात की हुई है। जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिन्होंने उसको टारगेट किया, उसको बैन किया, उनके जो चहीते और पालतू मीडिया है जिन्होंने उसको कैरेक्टर असैसिन किया, उसको रेपिस्ट कहा, उसको एकदम से कॉर्नर कर दिया। जब वो सारा को भी डेट कर रहा था तो उन लोगों ने दे मेड श्योर कि उनका ब्रेकअप हो। और इवन करीना वेंट ऑन रिकॉर्ड टू से के डोंट डेट योर फर्स्ट हीरो प्लीज। सो ओपनली जो है आपको कैरेक्टर असैसिन किया जाता है, ओपनली आपको रिडिक्यूल किया जाता है। जब वो लड़का बिल्कुल कॉर्नर हो गया, देन अनदर ग्रुप ऑफ इमोशनल वल्चर्स केम एंड देन दे डिड व्हाट दे डिड। तो ये सेम गैंग मुझे भी मिला है। कंगना जी, is it Kangana versus the rest of Bollywood in this fight to bust and clean up? It is not Kangana versus the rest. It is the underprivileged and the privileged. It is the outsider and the insider. It is altruism versus individualism. That is what it is. And I want to keep it not a personal fight as such. I want to have the clarity that when I make path for myself, I will be making path for millions others. And to be honest, I have their support. Otherwise, it is not possible for me to come this far. Even though I have put a lot at stake, and at times I do feel alone. And also people talking rubbish, discrediting me and trying to tell me that I have BJP behind me. When I left my house at 15, then BJP was there. When I filed a FIR, then BJP was there. When I fought a case against my ex, BJP was there. When I fought with Karan Johar, then BJP was there. You can't discredit a woman, her journey, her value system and her fight by crediting man or a group of men for that. My fight is my own. Tomorrow I may win or I may lose. But one thing is sure, every decision that I ever made has been my own. So please don't say that somebody else is, using me as a political bullet or whatever. कंगना जी, आपने अब 2 करोड़ का दावा लगाया है स्टेट के अगेंस्ट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर द डेमोलिशन ऑफ योर हाउस। ये 2 करोड़ मानहानि का है या सिर्फ डेमोलिशन का है, या इज दिस द अनाउंसमेंट ऑफ कंगना टेकिंग ऑन द स्टेट? आप सबक सिखाना चाहती हैं कि आप कमजोर नहीं हैं और कोई ऐसी लड़की जो ऐसा फाइट पिकअप करती है या ऐसी लड़ाई में आती है वो कमजोर नहीं है। देखिए, भुगतान तो उनको देना ही पड़ेगा जो उन्होंने गुंडागर्दी की है और जो भी उनके क्लेम्स हो। मगर मेरा फर्नीचर, मेरे विंटेज सोफाज, माय एंटीक शैंडलियर्स, cutlery, my coffee machine, my editing equipments, speakers, they are not the property of BMC. They can't break those. They have broken everything. Every single thing that was there, they have broken. So I will take compensation for that because it's my hard-earned money. And like what you said, what they did to me mentally, emotionally, that I think the karma will get to them. The way, like I said, I felt raped, violated mentally. 4 nights that I stayed in Mumbai, I was not able to sleep because of constant threats, humiliation, abuses, cases.
after cases. So that, I think karma will settle the scores for that, but I will make sure that legally they compensate for the damages, at least monetary damages, because rest cannot be healed and concealed unless I see them suffer the way they have made me suffer. I want to see them to be treated the way they deserve to be treated. Right now, they're behaving like the kings of Maharashtra, but the truth is that they don't deserve that position. They have got that position on the goodwill and good karma of somebody else. Time to take it back from them, and unless that doesn't happen, I will not be healed. I will remain wounded. आप कर्मा की बात कर रही हैं, मैं धर्मा पे आती हूँ. धर्मा क्या है? धर्म क्या है स्टेट का? धर्म क्या है बॉलीवुड का? जब डेमोलिशन हुई, आपके साथ कोई आके खड़ा हुआ आपके लिए, या आपके साथ किसी ने 2 आंसू बहाए? आप रोई थी? आपके साथ कोई रोने आया? बॉलीवुड से तो नहीं, जबकि मैंने ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे बातें देखी जहां पे वो इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ तो क्या हुआ, ये इसमें क्या बड़ी बात है, कुछ ज्यादा ही बोल रही थी तो अच्छा हुआ इसको चुप कराया. ये खुद को जो लिबरल कहते हैं, जो बॉलीवुड में जो खुद को इज्जतदारी का क्राउन पहनते हैं और मसीहा बोलते हैं, ये खुशियां मना रहे थे कि आज एक लड़की को सरेआम बेइज्जत किया गया है, उसको जो है मेंटली इमोशनली रेप किया गया है. इस चीज में जो है उन्होंने खुशियां मनाई है. मगर मेरे ऐसे कुछ दोस्त जो कि लोकल्स हैं और वहां से हैं और मेरे खुद करीबी जो है दोस्त हैं, साथ में जो मेरे साथ काम भी करते हैं, उन लोगों का बहुत सहयोग मिला, उनकी बहुत सहानुभूति मिली, फैमिली की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की और कुछ मीडिया के दोस्तों की. तो ऐसे मुझे काफी सपोर्ट भी मिली और देश से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली. लेकिन जो जैसे आप धर्मा की बात कर रहे हैं, हर एक चीज, हर एक पावर जो है, जब तक उसका एक सिस्टमैटिक चैनलाइजिंग नहीं होगी, जैसे फिल्म इंडस्ट्री भी एक सॉफ्ट पावर है, इसकी सिस्टमैटिक, इट शुड बी इन सिंक विद व्हाट वी एज अ नेशन वांट्स. इट शुड बी इन सिंक विद आवर प्रायोरिटीज एज अ नेशन. ये अपना ही कुछ करते रहते हैं, अपनी कुछ अजीब सी फिल्में बनाते रहते हैं. वी नीड टू फोकस ऑन फिल्म्स दैट एम्पावर आवर कल्चर, आवर पीपल, आवर वुमेन, underprivileged, and above all, it gives, it redefines the glory that India has been missing for decades and decades, even after the independence. We are in the slavery mode. We are failing to find self-respect in being Indian and Indian-ness, you know, whether it is Hindi or whether it is our local languages or our own clothes or our food or everything. It is aspirational to be American or European. This is for movies to establish the self-respect that we as a nation deserve, which has been injured, hugely injured through the slavery of thousands of years. And what is the dharma of the government? Government is in a position of a guardian. एक रक्षक जब भक्षक बन जाता है, that is the Kaliyug's biggest feature, I'd say. So ऐसे भक्षकों को, हमें भक्षकों का बहिष्कार करना चाहिए. And we as people, we should stand strongly and we should, देखिए आज क्या होगा ना, आज ये गवर्नमेंट है, कल कोई और गवर्नमेंट आएगी, उसके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा, उसका घर तोड़ा जाएगा, और वो गवर्नमेंट क्या कहेगी, जब कंगना का घर टूटा था तब तो तुम चुप थे, उनकी हड्डियां तोड़ी जाएंगी. तो आज जो खुशियां मना रहे हैं ना, तुम लोग अपनी मौत का गड्ढा खोद रहे हो जो तुम खुशियां मना रहे हो, क्योंकि कल इतिहास तुमको कहेगा कि जब कंगना के साथ ऐसा होता तब तो तुम चुप थे. कंगना तो खड़ी हो गई, उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट जाएगी, खड़ी हो जाएगी, तुम कैसे खड़े होंगे? तो खुशियां मत मनाओ. ये देखो कि सरकारें तो आती जाती है, लेकिन जब डेमोक्रेसी का रेप होता है ना, और जब आप चुप होते हैं ना, तो एक दिन आपका भी रेप होगा और तब दुनिया चुप होगी. So that is what I want to tell people. जो खुशियां मना रहे हैं आज इस ओपन लिंचिंग ऑफ डेमोक्रेसी की, जो खुशियां मना रहे हैं, उनको मेरा यही मैसेज है. कल जया जी के लिए बहुत सपोर्ट आया. लोगों ने कहा दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ स्पाइन, एक रीढ़ की हड्डी की यही डेफिनेशन होती है. और रिया चक्रवर्ती को जब जेल हुई तो सबने कहा कि ये पेट्रियार्की की वजह से है, एंड यू नो
Roses are red, violets are blue. Let's smash patriarchy, me and you. उनको आज आप क्या कहना चाहेंगी? नविका जी, आप अगर उन लोगों को नोटिस करें तो उनमें से एक भी इंसान नहीं है जो सेल्फ इंडिपेंडेंट है। सबके सब रोटी पे पलने वाले पालतू हैं। उनको रोटी मिलती है और वो उस पे वैसे ही पूरा वो गैंग है वैसे ही शुरू हो जाता है। अब जैसे मैंने ट्वीट भी किया था, एक बहुत फेमस कोरियोग्राफर ने वंस शी सेड, जब उनको कहा कि लड़कियों का रेप होता है, उनका टॉर्चर होता है, तो शी फेमसली सेड, क्या हुआ, रेप किया तो रोटी तो दी ना। So she comes from a generation, I am not ridiculing her struggles, she comes from a generation, she is no more very like a goddess kind of a character in my life, a mother figure, but जब हमारा देश आजाद हुआ था and 90% of the population was malnutrition, that time roti was the priority, रोटी के आगे कुछ नहीं था। अभी भी इन लोगों को क्या है, एक रोटी में खरीद लो। So that needs to change. I know so many people where India is today, they're not even working, still societies give them grocery. अभी रोटी is not our pursuit anymore. This needs to sink in from film industry people. उन लोगों ने अभी भी माई बाप बनाए हुए हैं सबने, क्योंकि आप देखो जो मैसेज कह रहे हैं रोजेज, ये मैसेज फॉरवर्ड किया होता सबको, नहीं तो सब एक ही मैसेज क्यों लिखेंगे? यू टेल मी, इफ यू राइट अ ट्वीट और आई राइट अ ट्वीट, देयर विल बी टू डिफरेंट ट्वीट्स. You say something, I say something, there will be two different opinions. They may mean the same thing, but they will have a different language and perspective. So these people, how come when they come and they like a organized crime, when they do, they have only same thing, candle march, placards same, you know, the नाराबाजी same, आजादी के नारा इनका same होता है, roses are violet वो same होता है। ये क्या है, कौन दे रहा है, कौन इनका माई बाप है, कहाँ से रोटी मिल रही है? So they need to discover the new India. The new India is not just about roti. It is, we want self-respect, we want our real worth, and we want to feel pride in being Indians. ये सब gang है. They are not their individual opinions. Let me tell you that. Applies only to Riya Chakrabarti, not to Kangana Ranaut, when her house was being demolished. Definition change हो गया. तो मैं वही कह रही हूँ आपको. So that's what I'm saying, that this is not their own opinion. इनको remote control पे somebody is, because they're all saying the same thing. तो कौन है? कौन है ये माई बाप? कौन है ये किंग? कौन है ये डॉन? Well, there are, like I said, there are layers of people who handle जो आपको intellectually inject करेंगे agenda. They are different. Financially agenda inject करेंगे. They are different. You know, and then they are all kind of in layers. There are people who handle through techie coffee shows, or there are people who wear chappal and talk intellectual stuff about God and being spiritual. There are some who have been Rajya Sabha members who politically inject their agendas. So there is not one person. There is some who will say intolerance, died, we to mar gaye. They will create a situation of panic and terrorism in the country. और आज तक उनके घर की किसी ने ईंट भी नहीं तोड़ी है, जिन्होंने तमाशे इतने कर दिए. तो ये तमाशा जो ये गैंग है, ये आप देख लीजिए एक थोड़ी है. अगर एक होती तो, और इनके साथ में लोग जुड़ते ही जा रहे हैं. अब शिवसेना और समाजवादी भी एक हो गई, सब ये पूरा एक बिकम वन बिग क्लटर. सो व्हाट डू आई से, हु डू आई पॉइंट आउट टू? तो कंगना जी, जाते हुए मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि आज आप सेना और सरकार दोनों का सामना कर रही हैं. जिन्होंने कहा था उखाड़ दिया, उनसे आज आप क्या कहना चाहेंगे? नविका जी, मैंने क्वेश्चन पूछे हैं संजय राउत जी से एंड उद्धव ठाकरे जी से कि उन्होंने मुझे हरामखोर मुफ्तखोर कहा. मैंने तो बता दिया, और मैं पेपर से भी ये प्रूव कर सकती हूं कि मैं मुफ्तखोर नहीं हूं. उनको मुझे प्रूव करना है कि वो मुफ्तखोर नहीं है. व्हाट इज देयर रियल वर्थ? आई वांट टू नो एज एन इंडिविजुअल, एज अ वुमन whose self-respect has been hurt, who has been mentally and emotionally raped in front of the entire nation. I want to know from them that apart from inheriting the power, the house, the property, the wealth from your father and completely sabotaging the father's
value system. I want to know what is their real worth. Who is Muftkor and who is not? Let the country decide. Let the democracy decide. That is all I want. और आप मुंबई कब वापस जाएंगी? Well, जिस तरह से मुझे टेरराइज किया गया है और जिस तरह से मुझे हैरेस किया गया है, आई होप कि उन्होंने डेफिनेटली ये सब मेरी आवाज बंद करने के लिए ही किया है. मैं बोलती रहूंगी और मेरी आवाज बंद नहीं होगी. मेरे भाई की शादी है अभी, उसके करके मैं यहाँ आई हूँ. बट वेरी सून आई विल गो बैक और मैं देखूंगी कि वो क्या करेंगे. मगर वो कुछ भी करे, वो मेरी आवाज बंद नहीं कर सकते. अगर मैंने अपने थॉट्स बाहर रखी हैं दुनिया में और वो इतने सारे लोगों ने अपनाई है, मेरे जाने के बाद मेरी थॉट्स लोगों के थ्रू बोलेगी एंड पीपल विल आस्क हिम द सेम क्वेश्चंस. सो वो कितने मुंह बंद करेंगे, कितने लोगों को मारेंगे, कितनों के घर तोड़ेंगे, कितनों को मेंटली और इमोशनली रेप करेंगे. दे हैव टू टेल अस कि व्हाट हैव दे डन फॉर मुंबई. महाराष्ट्र टुडे इज द मोस्ट इन्फेक्टेड स्टेट. उसका पूरी तरह से उन्होंने जो बर्बादी की है, दे आर आंसरेबल टू अस. मेरे पीछे पड़े हुए हैं ऑब्सेस्ड होके. व्हाट आर दे डूइंग? अपने काम तो करते नहीं है. सो this is what I will say to them, that I will come to Mumbai and they cannot shut my mouth. Well, that's Kangana Ranaut on Frankly Speaking, a woman who has the emotion but who also has the guts to take on the system. You decide, viewers, who's right, who's wrong. But an individual versus a system is never an easy fight and is never ever going to be an easy fight for anybody. That's the grit of a woman called Kangana Ranaut. Well, Kangana, you've touched many chords in many hearts. More power to you and more success to you. Thank you very much for joining me on Frankly Speaking. Thank you, Navika ji. Thank you for listening to me.